ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। As you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS Mains. अपना एग्जाम कदों होने लग गया है 1 अप्रैल ਨੂੰ as per the official notification and its time is coming nearby, right? And I hope you are preparing very well for that exam. So we have started this initiative which is absolutely free of cost for you. ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, right? We just want to help you out, right, in your preparation journey as much as we can, right? So with all this information, let's start our video of the day. This is session number 13. Okay. आज ਦਾ अपना टॉपिक, right? अपना टॉपिक रहेगा moral thinkers. लास्ट लेक्चर रहेगा moral thinkers का, then we will move on to the next section. ठीक है? ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करन तो पहला एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक, which is very much important for you, for all those students who haven't joined any test series rather, right? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ, right? It includes tech printed booklets plus mains test series both. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, right? If you talk about the notes plus mains test series, it cost rupees 8,000 only. And if you want only the test, that is rupees 5,000, right? 5,000 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, right? It's up to you, whatever you want, you can go for it. If you ask my recommendation, it is a very well thoroughly prepared test series, thoroughly prepared booklets. You can definitely go for these, right? So let's start with all this information. Now let's start with our lecture. We were covering Mahatma Gandhi ji, right? Yes, okay. ओके ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ये. एप्लीकेशन ऑफ गांधीज एथिक्स इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो वी नीड टू कवर दिस. महात्मा गांधी जी की एथिक्स हमने समझ ली थी अच्छे से, एंड आई होप आपको समझ में आ भी गई होगी. बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? तभी उस पर इतना टाइम लगाया गया था, राइट? उनके प्रिंसिपल्स बहुत जगह यूज होंगे आपके. फिर सिर्फ एथिक्स की बात नहीं है, और भी काफी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो सकती है, राइट? खैर, अगर हम एथिक्स की बात करें अपने, अब इनकी नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ गांधी जी एथिक्स इन मॉडर्न कंटेक्स्ट. आज के टाइम में, मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम में उनकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कहाँ है? बहुत सारी जगह पर है. इनफैक्ट गांधी यही एप्लीकेशन आपको आगे भी हम देखेंगे, लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्योंकि गांधी जी जैसे जैनिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वहां पर भी आपको काफी सिमिलर चीजें मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, सी नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड social movement. See, Gandhi's principle of non-violence and satyagraha have been adopted by numerous global movements for social justice and civil rights. Leaders such as Martin Luther King, Nelson Mandela, and Cesar Chavez employed Gandhian ethics in their non-violent struggle against injustice, oppression, and inequality. ठीक है, जो गांधी जी का नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का जो मेथड है वो बहुत सारे लीडर्स ने यूज किया है. बहुत इफेक्टिव मेथड है, राइट? रेसिस्टेंस के लिए, लाइक अपनी बातों को प्रूव करने के लिए, सामने वाला आपके सुनता भी है. Today's peaceful protest, civil disobedience, and advocacy for justice continue to draw inspiration from Gandhi's ethical approach, promoting change without violence. तो आज की डेट में भी काफी सारे जो प्रोटेस्ट है हमें दिखते हैं, लाइक पीसफुल प्रोटेस्ट. फॉर एग्जांपल अन्ना हजारे हमने देखा था, ठीक है? अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हम सबने देखा है. उनका एग्जांपल आप दे सकते हैं, वो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, यस और नो, बहुत इफेक्टिव भी रहा है वो. होता क्या है, इस टाइप के आपके जो प्रोटेस्ट रहेंगे, जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहते हैं, इतने इफेक्टिव क्यों रहते हैं? बिकॉज मास पार्टिसिपेशन इसमें जुड़ती है. रीजन बीइंग, अगेन, नॉन वायलेंट, आप ट्रस्ट जीतते हैं जब आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, आप सामने वाले का ट्रस्ट भी जीतते हैं, सबको आप पे भरोसा रहता है, तो आपके साथ भी खड़े रहते हैं. कल हमने देखा था ये, राइट? तो वो भी रीजन होता है बहुत बड़ा. ठीक है, ओके. सो इस वे में आज के टाइम में इसका यूज कर सकते हैं आप. देन एनवायरमेंटल एथिक्स. सी हाउ डज एनवायरमेंट एथिक्स और गांधी जी के प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है? सी गांधी जी स्पिरिचुअलिज्म में थे, वो कहते थे आपको किसी को हार्म नहीं पहुंचाना. और जब हार्म की बात आती है तो वो सारे लिविंग बींग की बात करते थे. ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी लिविंग बींग है, आपके एनवायरमेंट बेसिकली, उसको भी हार्म नहीं पहुंचाना, उसको भी सही मेंटेन करके रखना, सस्टेनेबल रखना है. दूसरा, आपको ग्रीड नहीं करनी, आपको रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में यूज करना है, right? In that sense you can use it. So Gandhi's focus on simplicity, non-possession, and sustainable living offers a relevant ethical framework for today's environmental challenges, right? His advocacy for self-sufficiency and minimalism
aligns with the goals of reducing consumption, protecting natural resources and promoting sustainability. Yes or no? Right? Relate कर पा रहे हो? His belief in the interconnectedness of all life supports modern ecological ethics, where the well-being of humans is inseparable from the health of the environment. All in all, it what मैंने जो दो चीजें आपको बताई, इनको ध्यान रखना है एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर कि लाइक गांधी जी का क्या कहना है कि आपकी वेलबींग आपके एनवायरनमेंट के हेल्थ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। राइट, सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मेटीरियल चीजों के पीछे नहीं पड़ना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ज्यादा अपने पास होल्ड करके नहीं रखना, ग्रीड नहीं होनी चाहिए आपके। जब सब कुछ आप सिंपल लिविंग सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, तो आप चीजों की ग्रीड ही नहीं रहेगी, तो सब चीजों को ढंग से यूज करेंगे आप। राइट, तो एक सस्टेनेबल लिविंग आएगी अपने आप। ठीक है, उस वे में देन ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, यहाँ पर तो गांधी जी के क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस, गांधी जी तो ह्यूमैनिज्म के फॉलोवर थे। राइट, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सारों को बराबरी का दर्जा देते थे। ठीक है, इक्वल सोसाइटी फॉर इक्वालिटी इन सोसाइटी की बात करते थे। यस और नो? सर्वोदय की बात करते थे, सर्वोदय हम सब ने पढ़ा है। राइट, जितने भी डाउन ट्रोडन है सबको ऊपर उठाना है, सबको बराबरी का दर्जा देना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ट्रस्टीशिप हमने पढ़ा है। तो गांधीज एम्फेसिस ऑन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड द वेलफेयर ऑफ ऑल इज सेंट्रल टू ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। तो जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आएगी वहां पे गांधी जी का एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो आप। हिज प्रिंसिपल्स आर रिफ्लेक्टेड इन ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट रेसिज्म, colonialism and social injustice. His notion of Sarvodaya, the upliftment of all, resonates with the ethical demand for equity and justice in society. Yes or no? Right? I hope समझ आ रहा होगा यहाँ तक। Then Gandhi's ethics also inspire movements that seek to empower marginalized communities and addresses economic inequalities, reflecting his vision for society built on fairness and mutual respect. यहाँ पे क्या वर्ड देखने का है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तक में भी गांधी जी का एग्जांपल आप दे सकते हैं। राइट, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज आएगी कब? क्यों? क्योंकि आप ग्रीड, एक बंदे को ज्यादा अपने पास होल्ड करके रख रहे हो, आप एक रिसोर्सेज को होल्ड करके रख रहे हो, दूसरे को जिसकी जरूरत है उसको नहीं दे रहे, तब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है। क्लियर है बात? राइट, तो फेयर सोसाइटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में भी आप दे सकते हैं। राइट, ये तो क्लियर कट हमने पढ़ा है कल। राइट, ओके, देन यस, पर्सनल एथिक्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनल एथिक्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अब ये क्यों मेंटेन करके रखना है? ठीक है, लेट्स सी। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, गांधीज फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरल इंटेग्रिटी एंड सेल्फलेस सर्विस encourages people to live ethically and thoughtfully in their personal lives. अब देखो, जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल होगा, डिसिप्लिन हो गया आप, राइट, गांधी जी ने बोला है ये, तो उससे क्या होगा? जब इंटरनली आप डिसिप्लिन हो, इंटरनली आप प्योर हो, तो आपके एक्शंस जो है ना उसमें रिफ्लेक्ट होगी वो चीज, आपके एक्शंस भी वैसे प्योर होंगे, आप दूसरों के साथ सही करोगे हमेशा, सोसाइटी के अंदर विजडम रहेगी, प्रोस्पेरिटी रहेगी उससे। यस, so his message of self control and responsibility can be applied in today's world where consumerism and materialism often dominate. Right, इसको बेसिकली आप क्या कहोगे सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर कि इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल एथिक्स गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एक्सटेंड्स टू हाउ वी ट्रीट अदर्स इन एवरीडे इंटरेक्शंस, प्रमोटिंग काइंडनेस, पेशेंस एंड रिस्पेक्ट। राइट, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, आप दूसरों पे के साथ ढंग से बिहेव करेंगे, हमेशा काइंडनेस रहेगी, कंपैशन रहेगी, राइट, फॉरगिवनेस रहेगी आपके अंदर, रिस्पेक्ट देंगे दूसरों को। यस और नो? और दूसरी चीज पर्सनल एथिक्स सेल्फ डिसिप्लिन से एक चीज और भी होती है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि आप हमेशा क्या करेंगे, लाइक पीछे भी देखा हमने कि आप लार्जर इंटरेस्ट की तरफ सोचेंगे, पब्लिक की तरफ सोचेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ नहीं सोचेंगे ज्यादा। राइट, ओके, सी महावीरा पे जाने से पहले एक और लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा था मैं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दिस सेल्फ डिसिप्लिन विल हेल्प यू टैकल दिस थिंग कि व्हाट यू विल डू। आप देखेंगे सर्वोदय, सबका भला देखेंगे आप। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखोगे और प्रोफेशनल इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को आगे रखोगे। सो द थिंग्स लाइक नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, गांधीज एथिक्स हेल्प यू फाइट ऑल दिस।
ठीक है, गांधी एथिक्स विद फाइट, गांधी जी का एथिक को फॉलो करने से इन चीजों से फाइट करने में हेल्प होगी आपको। यस, इसमें में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज महावीरा, मतलब जिनके हमें लाइफ के लेसन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एथिकल एथिक्स और टीचिंग्स जिनकी इंपॉर्टेंट है, वो है महावीरा। महावीरा बोले तो जैनिज्म बेसिकली, एंड एज वी नो महात्मा गांधी जी भी बहुत इन्फ्लुएंस थे इससे। ठीक है, दैट इज द रीजन आपको जैनिज्म के अंदर अभी हम जो पढ़ेंगे इनके, जो इनके 5 वाउस या फिर जिनको हम महाव्रत भी कहते हैं, ठीक है, वो काफी सारे उसमें से काफी कुछ आपको गांधी जी की फिलोसफी से मिलता जुलता लगेगा। ठीक है, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में आई गेस। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग आपको जरूर हिस्ट्री में आपने, देखो हमारा जो पॉइंट है ना इसको पढ़ने का, वी आर नॉट गोइंग इनटू द ब्रीफ ऑफ इट लाइक जैनिज्म क्या है और ऑल दैट, वो आपने हिस्ट्री में पढ़ना है, वहीं पे पढ़ना है। हमें सिर्फ यहाँ पर उनकी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मॉरल लेसन्स हमें सीखने को मिले, यहाँ पर क्या एथिकल लेसन्स हमें सीखने को मिले, कैसे उनको हम अप्लाई कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन आई एम टीचिंग दिस वन लाइक अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से ही करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है अगेन, क्योंकि आजकल यूपीएससी ऐसे पूछने लग गया, तो मे भी आपके पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, कि एप्लीकेशन पार्ट, बट वो सीधा सीधा ही पूछेंगे तो भी इससे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको तब भी इतनी नफ पॉइंट्स मिल जाएंगे कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा आपसे कि भैया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या है, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है जो कि हमें सीखने को मिलते हैं जैनिज्म से, तो वो भी यहाँ से कर लोगे। और अगर वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर उसकी एप्लीकेशन पूछे, लिंकेज पूछे, तो भी आप बता दोगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ महावीरा, अ की फिगर इन जैनिज्म, एंड डिस्कस हाउ दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू मॉडर्न डे पब्लिक सर्विस कंडक्ट। राइट, तो अगेन स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन, हमेशा आंसर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, पहले आपको इंट्रो लिखनी है, देन बॉडी, और देन कंक्लूजन। सी कोशिश क्या करो कंक्लूजन हर जगह दो। ठीक है, इनफैक्ट कहीं पर नहीं भी रिक्वायर, कहीं में मांगा नहीं हुआ, बट आप वहां पर भी एक लाइन के अंदर कंक्लूड कर दो, ज्यादा अच्छी बात है इफ पॉसिबल। ठीक है, नहीं अलाउ कर रहा तो कोई बात नहीं, जाने दो एक आधे में, बट ट्राई करना है आपको स्ट्रक्चर सब में फॉलो करना ही करना है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन देख लिया हमने। क्वेश्चन के अंदर हमें पहले इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो के अंदर सीधा सीधा महावीरा की बात हो रखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ महावीरा, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे महावीरा का। ठीक, तो महावीरा द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर like of Jainism emphasize a set of ethical principles known as the 5 great vows and or the Mahabharat। ठीक है, ठीक है, आपको अपनी लाइक ये चीजें फॉलो करनी है, ये महाव्रत फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी अल्टीमेटली, ग्रेट आप अल्टीमेट रियलिटी के साथ मिल पाएंगे, आपको समझ आएगी चीजें। ठीक है, ओके, so these principles are foundational to Jain philosophy and provide guidance for leading a moral and ethical life। Yes or no? ठीक, while originally intended for spiritual seekers, the principles can also be applied to modern day public service conduct, promoting values such as non-violence, truthfulness, non-stealing, chastity and non-possession। बेसिकली यही 5 वाउज हैं इनके, अभी देखते हैं एक करके। कि ओरिजिनली तो स्पिरिचुअल रीजन से बनाया था कि आपको क्या काम करना है, मोक्ष की प्राप्ति, लाइक आपको अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट नॉलेज गेन करनी है बेसिकली। ठीक है, ज्ञान जो होता है जैनिज्म के अंदर पढ़ते हैं हम, तो आपको वो गेन करना है, अल्टीमेट नॉलेज चाहिए। बट आज के कंटेक्स्ट में भी पब्लिक सर्विस कनेक्ट के अंदर भी इन प्रिंसिपल्स को डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, लाइक ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस, ट्रुथ क्यों, क्या पावर है ट्रुथफुलनेस के अंदर, ऑनेस्ट रहने के अंदर क्या पावर है, हमने गांधी जी में भी सीखा है कि जब आप अंदर से ऑनेस्ट रहते हो, ठीक है, हमारा आपका हर टच ऑनेस्टी पे रहता है आपका, तो आपके अंदर करेज भी रहेगा उस चीज को, आपके एक्शंस भी सही रहेंगे उसकी वजह से। राइट, खैर, लेट्स स्टार्ट। सो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली द एथिकल प्रिंसिपल्स, द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ महावीरा, क्या है एथिकल प्रिंसिपल्स, लेट्स सी। महावीरा's ethical principles serve as moral compass in Jainism, guiding individuals towards a life of compassion, integrity and spiritual progress। ठीक है, these principles known as the 5 great vows or Mahavras provide guidelines for leading a morally upright and spiritually progressive life। Right, so let's see what are these 5 great vows are। First is ahimsa,
नॉन वायलेंस देन इज सत्य, ट्रुथफुलनेस देन अस्तेय, नॉन स्टीलिंग देन ब्रह्मचर्य चेस्टिटी एंड देन अपरिग्रह नॉन पोजेशन। ठीक है, ये 5 आपके मेन प्रिंसिपल्स हैं, या रोज कह लो, वाउस कह लो, या महाव्रत कह लो। ठीक है, ओके। सो एक एक करके देखते हैं सबकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, द बाय द वे रेलेवेंस क्या है इनकी, एथिकल प्रिंसिपल espoused by Mahavira, the key figure in Jainism, can be applied to modern day public service conduct to promote integrity, compassion, and justice. Here's how these principles can be relevant. First, अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, क्या फायदा होता है इसका, अहिंसा को अगर अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, अहिंसा का बेसिकली मतलब हमने गांधी जी में भी देखा था, नॉन वायलेंस यहाँ पर सिर्फ आपको एक्शंस में नहीं झलकनी चाहिए, आपके आपका थॉट अंदर से भी आपको बिल्कुल नॉन वायलेंस को अपना फंडामेंटली पार्ट बनाना है। इट शुड बी फंडामेंटल, योर इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपका। तो उससे क्या होगा, जब आप दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहेंगे, आपके अंदर हमेशा एक कंपैशन वाली फीलिंग रहेगी, राइट। यू विल बी कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स, फॉर गिविंग टुवर्ड अदर्स। तो एक पीस रखेंगे आप लोगों से, रिस्पेक्ट करेंगे लोगों की, दूसरों का भले की सोचोगे हमेशा। ये एक्चुअली मीनिंग नॉन वायलेंस का, right? So ahimsa is the foundational principle of Jainism and holds a central place in Mahavir's teachings. It emphasizes the practice of non-violence in thought, speech, and action towards all living beings. This is an important line, right? आपकी जो नॉन वायलेंस है वो सिर्फ आपके एक्शंस में नहीं, इट शुड थॉट, स्पीच एंड एक्शन, तीनों में। ठीक है, टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स, रादर सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, सारे लिविंग बींग्स। These principle extends beyond physical harm and includes refraining from causing injury, pain or suffering to any creature. ठीक है, सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं, मतलब आपको सारी चीजों से अवॉइड रहना है, दूसरों को किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं है। अहिंसा प्रमोट्स कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, राइट। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ भी जाता है ये। क्लियर हुई बात? यस, ओके। देन नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट मतलब आपको किसी ग्रीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी चीजें नहीं होंगी, आप किसी से जुड़े हुए नहीं हो ज्यादा। ठीक है, आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन भी रहेगा। यस, सो नॉन अटैचमेंट एम्फसाइजेस लेटिंग गो ऑफ मटेरियल पोजेशंस एंड डिजायर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक, द प्रिंसिपल कैन गाइड ऑफिशियल्स टू प्रायोरिटाइज द ग्रेटर गुड ओवर पर्सनल गेन्स। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेन, आपको किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी ज्यादा। यू शुड, आपको अंदर के डिजायर्स, अपने पर्सनल डिजायर्स को लेट गो करना है, अपने साथ नहीं रखना। तो जब ऐसा होगा तो आप दूसरों की सोचोगे, हमेशा अपनी नहीं सोचोगे। तो हमेशा लार्जर इंटरेस्ट की सोचोगे, पर्सनल गेन के बारे में नहीं सोचोगे। यस, तो पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आपकी पब्लिक सर्वेंट्स कैन अवॉइड करप्शन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म by remaining detached from material wealth and by making decisions based on fairness, justice and the welfare of people they serve. क्लियर हुई बात? आई होप समझ आया होगा, राइट। की पॉइंट्स ले लेना बस, जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यहाँ से सिर्फ आपको की पॉइंट्स निकालने हैं, वो भी ध्यान रखिए, मोर देन इनफ है आपके लिए, राइट। मैं नहीं कहता आपको एज इट इज सारा लर्न करना है या पर देखना है एक बार, नहीं, आप सिर्फ की पॉइंट्स निकालते चलो यहाँ से। ठीक है, ओके। देन इज सत्य, ट्रुथफुलनेस। ठीक है, ऑनेस्ट होने के क्या फायदे हैं? ठीक है, सत्य emphasizes the importance of truthfulness in all aspects of life. Mahavira stressed the significance of speaking the truth and avoiding falsehood. Right? Satya also encompasses being truthful to oneself and maintaining integrity in thought, words, and deeds. Practicing Satya cultivates trust, transparency, authenticity in relationship and interactions. See, पहली बात तो यहाँ पर जो ट्रूथफुल रहना है आपको, वो सिर्फ दूसरों के साथ बोलने के लिए नहीं, आपको अपने आप के साथ भी ट्रूथफुल रहना है, अंदर से भी ऑनेस्ट रहना है। तो जो पता था गांधी जी में पढ़ा था हमने कि अपील टू द हार्ट करनी है। अपील टू द हार्ट होती है, आपकी जो इनर कॉन्शियस है उसकी सुननी होती है, क्योंकि ऑल आर गुड बीइंग्स। ठीक है, एनीवेज, बेसिकली आपको अंदर से भी ट्रूथफुल होना है, आपके थॉट में भी और एक्शन में भी, राइट। अब इसका फायदा क्या होगा यहाँ पर? सी, इसका फायदा यहाँ पर ये होगा कि आप जो ऑनेस्ट बंदा होता है उस पे सबका ट्रस्ट भी रहता है, सबको पता होता है सामने वाले को कि भैया ये सच्चा है, तो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, उस पर ट्रस्ट करा जाता है। जब ट्रस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, राइट, तो उससे लोगों पे आप पे ट्रस्ट रहेगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे। आपको जब भी किसी काम की नीड है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो पब्लिक सर्विस में तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है इस चीज से, राइट। आपको सपोर्ट रहता है हमेशा,
आपको कम रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही होती हैं, कम आपको ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करनी पड़ रही होती हैं, राइट, बिकॉज यू आर ट्रूथफुल, दैट इज द रीजन दे आर डूइंग दैट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी को आप इससे लिंक कर सकते हो, राइट, बीइंग ट्रूथफुल को ट्रांसपेरेंसी से लिंक कर सकते हो। क्लियर हुई बात? ओके। देन इज ब्रह्मचर्य और चस्टिटी। इसके से क्या होगा, ब्रह्मचर्य करने से आप जो आपके सेक्सुअल मिसकंडक्ट है उससे दूर रहोगे, ठीक है, रॉन्ग डूइंग्स है उससे दूर रहोगे, इंटरनली प्योर रहोगे। जब इंटरनली प्योर होगे तो आपके एक्शंस भी प्योर रहते हैं, राइट, इंटरनल प्योरिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपके एक्शंस भी प्योर रहेंगे, सही डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, एक मीनिंगफुल लाइफ रहेगी आपकी, आप सही जगह अपना टाइम भी स्पेंड करेंगे, ठीक है, अपनी एनर्जी जो है उसको सही जगह चैनलाइज करोगे, वरना गलत जगह चैनलाइज हो जाती है वो। सो इट प्रमोट्स द प्रैक्टिस ऑफ सेक्सुअल रिस्ट्रेंट एंड मॉडरेशन, right? It encourages individuals to channel their energies towards spiritual growth rather than indulging in excessive sensual desires. Yes or no? समझ आई बात यहाँ से? Brahmacharya encompasses self-control, celibacy and the avoidance of any sexual misconduct. ठीक है? I hope समझ आया होगा, की पॉइंट्स निकाल लोगे यहाँ से अब आप, ठीक? Okay. So these were the 5 great powers. अब आपको conclude करना है. So hence we can say, by applying these principles of Mahavira, public servants can promote a culture of integrity, compassion and service. तो conclusion में, upholding non-violence, truthfulness, non-stealing, sexual restraint and non-attachment ensures that public service is conducted in a manner that respects the right and well-being of all individuals and serves the best interest of society. Right? Mahavira's ethical principles. Public servants can create a more just, inclusive, and compassionate society that upholds the value of non-violence, non-attachment, and equality. Clear है यहाँ तक? ठीक है. So this was all from Mahavira. Now let's move on to Buddhism. ठीक है. अब बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं. तो अगेन हमें यहाँ से भी क्या उनके एथिकल लेसन्स, मॉरल लेसन सीखने हैं. दैट इज इट, जो कोर फिलोसफी है बुद्धिज्म की, जो एथिक्स सिखाती है हमारी स्पिरिट, जो हमें हमारी लिविंग में काम आएगी, ठीक है, कंडक्ट में रादर, सॉरी, हमारे कंडक्ट में हेल्प करेगी जो, तो हमें तो खाली वही जानना है, ठीक है, तो वही हमारे आंसर्स में हेल्प करे, दैट्स इट. सो लेट्स सी. जब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, द 4 नोबल ट्रुथ्स. सबसे पहले दीज आर द थिंग, यही मेन एथिकल लेसन है, जो 4 नोबल ट्रुथ हमने अपने को वही जानने कि क्या चीज है. 4 नोबल ट्रुथ क्या है? फर्स्ट, दैट लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज, दुख, कि दुनिया में, ठीक है, बहुत दुख है संसार के अंदर, ठीक है, सॉरोज हैं, ये सच है, ठीक है, और इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है डिजायर, संसार बोलते हैं इसको, इसके अंदर इसका कॉज क्या है? डिजायर, राइट. ये आपका सेकंड नोबल ट्रूथ. थर्ड क्या है? कि यस, दिस डिजायर, ये कॉज जो है इसका, या फिर ये दुख, सॉरी, ये दुख जो है ये एंड कर सकते हैं. यू कैन पुट एन एंड टू दिस सफरिंग. वो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाणा, ठीक है, एंड कर सकते हो आप, राइट. अब फोर्थ आपका नोबल ट्रूथ क्या है? फोर्थ बोलता है कि ये एंड करने का तरीका क्या है, आप कैसे कर सकते हो? यू नीड टू फॉलो एन 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं. अष्टांगिक मार्ग, आपको वो पाथ फॉलो करना है. अगर आप ये पाथ फॉलो करोगे तो आप इस चीज से फ्री रहोगे, आप निर्वाणा अचीव कर पाओगे, मोक्ष अचीव कर पाओगे, राइट. सो सी हियर, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख, sorrow is caused by desires, sufferings can end, निर्वाण, ठीक है, इसको निर्वाणा बोले. the path to end is the noble 8-fold path, or it is also called as the magga, right. So let's see what is this ashtangik marg. So these are the 8 things that you need to do. अगर आप ये करोगे तो लाइफ में आपकी जिंगल वाला बढ़िया हो जाएगी, एकदम मस्त वाली, ठीक है. तो लाइक फर्स्ट क्या है आपका? राइट व्यू. अब हम ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ रट्टे मार लेते हैं, ऐसे पढ़ा हो गया, एक एक लाइन पढ़ी, इसको सुपरफिशियली समझ लेते हैं. राइट व्यू देखना है बस, नहीं, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि राइट व्यू एक्चुअली किस व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किस दृष्टि की बात कर रहे हैं, व्हाट दे वांट अस टू सी, ठीक है. इन द सेम वे आगे भी सारे, राइट इंटेंशन या फिर राइट रिजॉल्व, देन राइट स्पीच, राइट एक्शन,
राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 आपके पाथ हैं, ये 8 एक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, राइट, टू अचीव निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। या फिर अदर, अगर मैं अपने टॉपिक की बात करें मैथ्स की, तो आपको ये 8 इन चीजों का ध्यान रखना है टू लिव एन एथिकल एंड मॉरली करेक्ट लाइफ। ठीक, चलो, तो फर्स्ट इज राइट व्यू। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फोर नोबल ट्रुथ्स, seeing the true nature of existence, recognizing the origin of suffering, the cessation of suffering, and the path leading to the cessation of suffering. See, ये क्या है बेसिकली? राइट व्यू मतलब एक्चुअली बोलते हैं ना कि ज्ञान के चक्षु खोलना, ये वो चीज है कि भाई आपकी ये वाली आंखें, ज्ञान नॉलेज वाली आंखें ये खुलनी चाहिए। ये लिटरली जो आपको दिख रहा है ये नहीं बात हो रही है यहाँ पर। तो जो आपके जो 4 नोबल ट्रूथ है, यू फर्स्ट नीड टू रियलाइज दैट कि ये एक्चुअली सही चीजें हैं, तो आपको दिखने चाहिए वो चीजें, आपको उनको समझना है बेसिकली। राइट व्यू का यहाँ मतलब है कि यू नीड टू हैव द व्यू ऑफ दिस फोर नोबल ट्रूथ्स, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस फोर नोबल ट्रूथ्स। आपको पता होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यस देयर इज सफरिंग इन द लाइफ। ये कहाँ से रिलेट कर रहे हैं बाय द वे? गौतम बुद्ध जी ने, आप सबको पता है कि उन्होंने ये सब चीजें देखी, पढ़ा है हमने हिस्ट्री के अंदर, तो उनको ये चीजें रियलाइज हुई। यही वो कह रहे हैं, पहले आप ये चीजें रियलाइज करो कि ये चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट, यू शुड हैव दैट विजडम। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भाई देयर इज सफरिंग इन दिस लाइफ, और सफरिंग का कॉज डिजायर है, आपको ये भी समझना चाहिए। और डिजायर को एंड भी किया जा सकता है, ये भी समझना चाहिए। और एंड करने के लिए आपको क्या चीज फॉलो करनी है ये पता होना चाहिए। ये है राइट व्यू। आपको फालतू चीजों में नहीं पड़ना, फालतू चीजों को नहीं देखना आपको, लाइक सुपरस्टिशंस, ये सब फालतू चीजें, इससे कुछ नहीं होने वाला। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, बहुत सारी गलत चीजें फैली हुई थी, आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चीज देखनी है, कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है, क्या चीज समझनी है, रादर क्या चीज आपके लिए सही है। सो दिस अवॉइड्स सुपरस्टिशन एंड कल्टिवेट्स राइट अंडरस्टैंडिंग। समझ आई? इट इज नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ विदाउट नॉलेज, बट ऑन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज। ये कह रहे हैं कि जो संसार है आपको समझना है उसको एक्चुअली में क्या आपके सामने जो एग्जिस्ट कर रहा है। आपको ऐसे बिना किसी हवा में किसी की बात सुन के नहीं। सुपरस्टिशन बेसिकली क्या होते हैं? उनका कोई सर पैर नहीं होता, किसी को नहीं पता होता क्यों कॉज है, क्या रीजन है, बस मान लिया जाता है विदाउट नॉलेज, उसको उसका बिलीफ होता है। उससे रिलेट करो, सुपरस्टिशन हमेशा विदाउट नॉलेज चलते हैं, वो जो बिलीफ होती है विदाउट नॉलेज, कोई बेस नहीं होता उसका। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आपको जो भी चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी नॉलेज, फैक्ट के साथ चलना, आपको वर्ल्ड को एज इट इज देखना है, रियलिटी में जीना है। ठीक है, रियलिज्म में थे बेसिकली, बट अपने को उसमें फिलोसफी वाले पार्ट में नहीं जाना। अपने को एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ठीक है कि जो आपके सामने होता है बेसिकली। अगर मैं एप्लीकेशन पार्ट की बात करूँ ना इसको कंटेम्प्रेरी टाइम में, इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके एक्चुअल में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आपको समझने जरूरी होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियली नहीं देखना, आपको एक्चुअली चीजों को समझना जरूरी है कि क्या कॉज है इस प्रॉब्लम का। राइट, जब भी आप पुलिस सर्विस की बात करें तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए उसका कॉज जानना है, उसका क्या रीजन है बिहाइंड इसके उसके। ठीक है, सुपरफिशियली नहीं, आपको हमेशा ध्यान देना है। यू शुड बी वेरी वेल लाइक अलर्ट एट दिस पॉइंट इन दिस थिंग। ठीक है, समझ आ रही है बात कि यूज भी कैसे करना होगा इसका? ओके, देन इज राइट इंटेंशन। अब ये जो है ना बेसिकली, ये राइट व्यू और राइट एक्शन के बीच का पार्ट है, ये इस गैप को बिल्ड करता है कि भाई पहले आपने चीजों को समझ लिया क्या चीज सही है क्या नहीं, फिर आप उसके दम पे एक्शन भी लोगे एक, कि आपको, और आपका एक्शन जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए। वो एंश्योर कब होगा? जब आपकी इंटेंशन सही होगी, राइट, उस काम को करने की इंटेंशन जो आपकी वो सही रहनी चाहिए। आपने पहले चीज को समझा, समझने के बाद आपका जो मोटिव है उसको करने का फिर बाद है वो भी सही रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम को समझा आपने अच्छे से, उसके बाद उसको कर, उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन जाओ ढूंढने जाओ, तो आपका इंटेंशन सही रहना चाहिए, आपको सही काम करना है। आपकी जो मोटिवेशन है वो करेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, इंटेंशन शुड बी करेक्ट, तभी आपका एक्शन भी आगे करेक्ट होगा फिर। क्लियर हुई बात? ठीक है, ऑल द एक्शन करते टाइम एक्शन वाले में कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो भी देखते हैं, बट इंटेंशन वाली पार्ट वाला जो पार्ट आई होप समझ आया होगा। सो इट मीन्स कमिटमेंट टू कल्टिवेटिंग अ रिफाइंड ethical and compassionate mindset. It acts as the feeling or motivation side of practice.
ब्रिजिंग द गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड एक्टिंग विद इन इट, द राइट एक्शन। सी इट कमिटमेंट बताया ना मैंने, आपका जो मोटिवेशन है वो, जो आपका जो कमिटमेंट है, कल्टीवेट मतलब आपका जो माइंडसेट है बेसिकली, कि जो का माइंडसेट है वो एथिकल होना चाहिए, राइट। वो कंपैशनेट होना चाहिए दूसरों की तरफ, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए इसमें, मोटिवेशन सही होनी चाहिए आपकी। राइट इंटेंशन इज डिफाइंड बाय थ्री स्पेसिफिक एंड मेंटल ओरिएंटेशंस। फर्स्ट इज इंटेंशन ऑफ रिनंसिएशन, इसको निखम्मा कहा गया है। लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट, ग्रीड एंड सेंसुअल डिजायर रादर देन बीइंग ड्रिवन बाय सेल्फिश डिजायर्स। क्लियर हुई बात, राइट। अपने डिजायर्स को जाने, सेल्फिश डिजायर को जाना, सेल्फलेसनेस बेसिकली, दूसरों के भले के बारे में सोचना है, अपना नहीं सोचना सिर्फ। इंटेंशन ऑफ गुडविल, कल्टिवेटिंग लविंग काइंडनेस, ठीक है। पहले में क्या है कि अपने डिजायर्स को जाने दो, दूसरे में डिजायर जाने दी, उसके बाद आपको दूसरों के प्रति कंपैशनेट, काइंडनेस वाली फीलिंग रखनी है, इंटेंशन रखनी है। कंपैशन एंड फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स वनसेल्फ एंड ऑल बीइंग्स व्हाइल रिलीजिंग एंगर एंड रिसेंटमेंट। सी फर्क आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि जितनी भी आप लाइक जैनिज्म में भी पढ़ रहे थे हम, अब अपना बुद्धिज्म के अंदर भी आए यहाँ पर, और गांधी जी वाले में डिफरेंस क्या है, या उससे पहले हमने बी आर अम्बेडकर जी पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी पढ़ा। इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो थे रेशनल थिंकर्स थे, बट जैनिज्म बुद्धिज्म रैशनलिज्म की बात नहीं, लॉजिक नहीं बता रहे खास आपको एज सच। यहाँ पे लॉजिक की उतनी बात नहीं हो रही, क्रिटिकल रीजन नहीं दे रहे इसके पीछे कि आपको क्यों करना है, किस लिए करना है। गांधी जी ने रीजन दिया इसका, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है इनमें, राइट। बट इतनी डीप आपको नहीं जाना है सच, आपको सिर्फ इतने तक रिस्ट्रेंट रखना है, बहुत है, इनफ है ये, ठीक है। सो यस, देन थर्ड वन इज इंटेंशन ऑफ हार्मलेसनेस, ठीक है, इंटेंशन ऑफ हार्मलेसनेस, अहिंसा, अहिंसा बेसिकली, कल्टिवेटिंग कंपैशन एंड हार्मलेसनेस व्हाइल एक्टिवली अवॉइडिंग क्रुएल्टी, वायलेंस एंड एग्रेशन, राइट। ठीक है, सो तीन इंटेंशन थी। पहली है आपकी रिनंसिएशन, डिजायर्स को लेट गो करो, जाने दो, ठीक है, अपने डिजायर सेल्फ डिजायर्स नहीं, सेल्फलेसनेस रखनी चाहिए। देन गुडविल, दूसरों का अच्छा सोचना है, आपको लविंग रहना है, कंपैशनेट रहना है, एंगर को जाने दो, ठीक है, रिलीज एंगर एंड रिसेंटमेंट, दूसरों की तरफ आपको कोई गुस्सा नहीं रखना, ठीक है, रिजेंट नहीं करना बिल्कुल भी। देन हार्मलेसनेस, ठीक है, दूसरों के लिए बिल्कुल ही वायलेंट नहीं होना, क्रुएल्टी वगैरह से दूर रहना, एग्रेशन से दूर रहना। यस, तो दिस इज द थ्री इंटेंशंस, आपकी ये इंटेंशन सही रहेंगी। अगर आपने, आपकी इंटेंशन, ये तीन इंटेंशन है, तीन चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन भी सही रहेगी हमेशा काम को करने की, तो अल्टीमेटली आपका एक्शन भी सही रहेगा, ठीक है। देन थर्ड इज राइट स्पीच। अब यहाँ पे थोड़ा अर्थ समझने वाली चीज है कि बुद्धा जो कह रहे हैं, बुद्धा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि आपको सिर्फ सही बोलना नहीं है, आपको ये भी देखना है, पहली बात तो आपको ट्रूथफुल बोलना है, डू नॉट लाई, नो लाइंग, नो लाइंग, ट्रूथफुल रहना है आपको, ठीक है, सच बोलना है। बट आपको सच इस हिसाब से बोलना है कि वो दूसरों को डजंट हर्ट एनीवन, डजंट हर्ट एनीवन, या रादर दूसरों का इसमें बेनिफिशियल रहे, इट इज बेनिफिशियल फॉर अदर, इसमें बोलना है कि वो बेनिफिशियल है दूसरे के लिए, राइट। और टाइम भी देखना है आपको, सही टाइम पे बोलना है, करेक्ट टाइम पे बोलना है। क्लियर हुई चीज। सी बुद्धा एम्फेसाइज स्पीकिंग ट्रूथफुली, beneficially and at the right time. It entails abstaining from four types of harmful speech: lying, divisive speech, harsh language and idle chatter. ठीक है, झूठ नहीं बोलना, डिवाइसिव स्पीच, दूसरों में किसी में बंटवारे नहीं डालने, ऐसी कोई स्पीच नहीं करनी इससे काम खराब हो रहा है। देन हार्श लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज बहुत पोलाइट रहनी चाहिए। आइडल चैटर, खाम का टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू बकरबाजी नहीं करनी। टू फोस्टर ट्रस्ट, पीस एंड मेंटल क्लैरिटी, इससे होगा क्या, ठीक है, इट विल बिल्ड व्हाट, इट विल बिल्ड ट्रस्ट। जब आप तरीके से बात करते हो तो सामने वाला को भरोसा आता है कि नहीं आता। मार्केटिंग जो है आज की डेट में, सारी मार्केटिंग इसी पे टिकी हुई है, ठीक है। जो ओरेटर, जो बोलने का तरीका होता है, उसी से तो होता है। जो सेल्स पर्सन होता है अपने बोली से चीजें ठीक करता है, बोली से ही अपना प्रोडक्ट बेचता है, क्योंकि आपको उसको भरोसा आ जाता है कि भैया सही कह रहा है, इतने भरोसे से कह रहा है, तो ठीक है, ट्रस्ट, इससे पीस भी रहेगा, यस और नो, और एक मेंटल क्लैरिटी भी रहती है, ठीक है, राइट। देन राइट एक्शन, ओके, ठीक है। अब आपके एक्शन भी करेक्ट होने चाहिए, जिसको सम्मक कमानता भी बोला गया है, ये सब पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब राइट एक्शन, आपका एक्शन हमेशा एथिकल होना चाहिए, नॉन हार्मिंग होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बिहेवियर है, फिजिकल बिहेवियर हमेशा एथिकल और नॉन हार्मिंग रहना चाहिए, पहली चीज,
It involves cultivating compassion. See, it cultivating compassion by abstaining from killing, stealing, and sexual misconduct, promoting peace, integrity, and mindfulness in daily actions to advance spirituality and reduce suffering. क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या क्या इंक्लूड करती है चीजें, आपके राइट एक्शन के लिए आपको क्या क्या करना है. यू शुड एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, नॉन वायलेंस से दूर रहना है एक्सटर्नली भी, ऑब्वियसली यस. स्टीलिंग, ठीक है, स्टीलिंग किसी को चुराने वाली, चुराना वुराना नहीं है, ऑब्वियसली यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग. ठीक है, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में, मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर इन प्रिंसिपल्स को कैसे लगाएंगे. कि स्टीलिंग की बात करें तो करप्शन से लिंक कर सकते हो आप इसको यहाँ पर, राइट. आपके एक्शन जो है करप्ट नहीं होना, करप्शन वाली चीज नहीं होनी, इससे अवॉइड करना है. एंड सेक्सुअल मिसकंडक्ट, डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो रॉन्ग डूइंग है सोसाइटी की, ठीक है, उससे भी आप परे रहेंगे. और सेक्सुअल मिसकंडक्ट से अगर आप नहीं करने हैं आपको कभी भी, ऑब्वियसली, ठीक है. प्रमोटिंग पीस, इंटेग्रिटी एंड माइंडफुलनेस इन डेली एक्शंस टू एडवांस स्पिरिचुअल एंड रिड्यूस सफरिंग, राइट. एक्शंस आर जस्ट टू बी राइट इफ दे डू नॉट हार्म टू वनसेल्फ और अदर्स. आपके एक्शंस हमेशा करेक्ट रहेंगे अगर वो खुद को भी और दूसरों को, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे तो वो करेक्ट है, सिंपल. देन राइट लाइवलीहुड, आपका जो काम है, ठीक है, जिससे काम काज है जो आपका, वो भी करेक्ट होना चाहिए. सी सम अजीवा, आजीविका, राइट. सी अर्निंग अ लिविंग इन एन एथिकल नॉन हार्मफुल मैनर दैट डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी. ठीक है, एथिकल नॉन हार्मफुल बिजनेस में रहना है, इसका मतलब ऐसे कामों से दूर रहना है जो कि नॉन एथिकल है, जो इससे ह्यूमैनिटी की जान, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंच सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंटॉक्सिकेंट लिकर, ठीक है, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो आपको उससे दूर रहना है, उसमें ट्रेड नहीं करना, ये वाला बिजनेस आपको नहीं करना. आर्म्स वगैरह की सेल परचेज वो नहीं करनी, वेपन्स, वेपनरी, उससे दूर रहना है, वो लोग, वो हेल्थ के लिए सही चीज नहीं है. और ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि नॉन एथिकल है, बाय द वे. इट रिक्वायर्स अवॉइडिंग प्रोफेशंस दैट कॉज सफरिंग टू ह्यूमंस और एनिमल्स. जो भी ऐसा प्रोफेशन जो ह्यूमंस या एनिमल्स किसी को भी एक सफरिंग, जिसके लिए हार्मफुल है, आपको वो नहीं करना. यू नीड टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, such as trading arms, sentient beings, flesh, intoxicants, or poison. Right? It advises against occupations that harm other beings. Right? Right livelihood means earning one's living in a righteous way, and wealth should be gained legally and peacefully. This is an important line. ठीक है, right livelihood means earning one's living in a righteous way, and wealth should be gained legally and peacefully. Clear हुई बात? Right? Okay. Then is right effort, समव्यायाम. राइट एफर्ट, आपका एफर्ट भी सही हो. इट कल्टिवेट्स अ होलसम माइंड बाय अबैंडनिंग नेगेटिव मेंटल स्टेट्स एंड फॉस्टरिंग पॉजिटिव वंस. हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एफर्ट होना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव एफर्ट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो. राइट एफर्ट इज मेकिंग एन एक्टिव कमिटमेंट टू प्रमोट होलसम क्वालिटीज एंड प्रिवेंट अनहोलसम क्वालिटीज. ठीक है, आपको सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज को अडॉप्ट करना है, पॉजिटिव क्वालिटीज को अपने पास रखना है, नेगेटिव को दूर रखना है जिसमें काम खराब हो रहा हो. तो मतलब जब भी कोई गुड वाली चीजें होंगी अपने पास रखो, ठीक है, लेके आओ, उसको अडॉप्ट करो, है तो उसको कंट्रोल करो. लेकिन जो बैड है, जो नेगेटिव चीजें उनको दूर करना है. लाइक इट इन्वॉल्व्स 4 की एक्सर्शंस. ठीक है, इसके अंदर 4 पार्ट्स है. क्या चीज? प्रिवेंटिंग अनअराइजन इविल, प्रिवेंटिंग अनअराइजन इविल, अबैंडनिंग अराइजन इविल, डेवलपिंग अनअराइजन गुड, एंड मेंटेनिंग अराइजन गुड. सी प्रिवेंटिंग अनअराइजन इविल, ठीक है, आपका एफर्ट ये होना चाहिए कि भैया इविल, वो बैड चीजें, अनएथिकल चीजें जो है आपकी, वो डेवलप ही ना हो, उनको दूर रखना, उनको डेवलप ही नहीं होने देना. और अगर कोई डेवलप हो गई है तो उसको दूर रखना है, अवॉइड करना है, ठीक है, गिव अप करना है, जाने देना है. और अगर जो गुड चीजें हैं, जो अच्छी हैबिट्स हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको अराइज करना है, उनको डेवलप करना है. और अगर जो डेवलप हो गई है तो उनको मेंटेन करके रखना है. यस और नो? तो ये 4 की कंपोनेंट्स हैं अंडर दिस राइट एफर्ट. ओके, देन इज राइट माइंडफुलनेस, सम्मसति. सी प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अवेयर एंड माइंडफुल इन ऑल एक्टिविटीज एंड थॉट्स. Practice of being aware and mindful in all activities and thoughts. It involves attentiveness to the body, feelings, mind, and phenomena.
राइट। हमेशा आपको अटेंटिव रहना है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अटेंटिव रहना है कि आपको अपने एक्शंस में भी और थॉट में भी, दोनों चीजों में लेजीनेस को अवॉइड करना है, हमेशा एक्टिव रहो। ठीक है, अपने थॉट्स को लेके भी एक्टिव रहो, थॉट्स आपके वीक नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आपके एक्शंस तो डेफिनेटली आपके सही होने चाहिए। द एसेंस ऑफ राइट माइंडफुलनेस इज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट टू व्हाट वन इज डूइंग एंड टू द स्पेस वन इज मूविंग थ्रू। आपको स्पेशली अपने प्रेजेंट में जरूर रहना है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, उससे अवेयर रहना है आपको। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, सो दिस वाज इट। देन इज राइट कंसेंट्रेशन, सम्मत समित समाधि। ये बेसिकली लास्ट स्टेप है, फाइनल है, जो एट फोल्ड पाथ का एट पाथ। ठीक, फाइनल स्टेप विच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ कंसेंट्रेशन थ्रू मेडिटेशन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेडिटेशन की, ध्यान लगाने की बात हो रही है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कभी प्रॉब्लम इसमें क्या है, इट फोकस ऑन द जनाना प्रैक्टिस, a state of deep concentration. The mind is freed from distractions and is able to see the things as they truly are, leading to wisdom. Basically मेडिटेशन की बहुत बात हो रही है यहाँ पर कि लाइक आपको सारी चीजें हटा के आपको सही पाथ को फॉलो करते रहना है। ठीक है, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है उसके ऊपर, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू विजडम ओनली। तो बेसिकली टिका के एक तरीके से अपने एम को देखते रहो और सारी चीजें हटाओ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। ये वो कहना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक अभी आपका फोकस जो है आपके एग्जाम पे होना चाहिए, मेंस के ऊपर होना चाहिए, टिका के उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, सारी चीजें हटा दो, वहीं आपकी मेडिटेशन है, वहीं आपकी साधना है, वहीं सब कुछ है आपके लिए इस टाइम। ठीक है, उस पर फोकस करते हुए, ठीक है, डेफिनेटली आप अचीव कर जाओगे, क्लियर भी कर जाओगे, अगर सही आपका एक्शन रहेगा। बेसिकली ये जो एट फोल्ड पाथ करे हैं ना, इसको अपनी प्रिपरेशन पे अप्लाई करो, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके। सो दिस वाज फ्रॉम बुद्धिज्म, राइट, एंड आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू की कंसेप्ट्स ऑफ कबीर। अब कबीर पे लाया करते, लास्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, सो लेट्स सी। बहुत अच्छे थॉट्स है भाई गुड कबीर के, बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे इनको आप। सो द फर्स्ट वन, द की कंसेप्ट ऑफ कबीर आई थिंक इज यूनिटी ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन। सी कबीर जो थे वो रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, इनके हिसाब से रिलीजन रिलीजन कुछ नहीं। जो आप रिलीजन प्रैक्टिस जो ढोंग कर रहे हो सब ढोंग है, कुछ नहीं, कहीं नहीं कुछ करना होता। बेसिकली रिचुअल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे वो, जो टेम्पल्स में जाना और ये सब गुरुद्वारे, कहीं कुछ नहीं। इनके हिसाब से भगवान आपके अंदर है, देर इज ओनली वन गॉड। होता है क्या, हर रिलीजन के अपने अपने गॉड होते हैं, वेरियस गॉड होते हैं, नहीं, इनके हिसाब से सिर्फ एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, और वो आपके अंदर ही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, जब ढोंग माया सब फालतू की चीजें हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सी वननेस ऑफ गॉड। कबीर बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ डिवाइन एंड रिजेक्टेड द सेक्टेरियन डिवाइड बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ठीक है, कास्ट इन डिविजन्स के भी अगेंस्ट थे। ठीक है, ही एम्फसाइज्ड that there is one God for all humanity regardless of religious identity and that true spirituality transcends labels and rituals. हिंदू, इस्लाम, सिख सब एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, कोई किसी का कोई गॉड नहीं है, समझ, सॉरी, वेरियस गॉड नहीं, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही डिवाइन पावर है, सिर्फ उसी में बिलीव करना है आपको। और उसके लिए कोई जब कोई रिलीजन ही नहीं होगा, बेसिकली इनके हिसाब से एक ही गॉड है। और रिलीजन क्या करते हैं, हर रिलीजन बेसिकली क्या है, गॉड को मिलने के लिए अलग अलग रिचुअल्स बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, जरिया बताते हैं, आप ये रिचुअल्स करते रहो, ये फॉलो करते रहो, अल्टीमेटली आप गॉड से मिलोगे जाके। ये बताते हैं, मोर और लेस रिलीजन के अंदर यही होता है। और हर रिलीजन के अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। इनके अकॉर्डिंग भैया एक ही गॉड है। ठीक है, अलग अलग गॉड नहीं है, हर रिलीजन अलग अलग गॉड को बताता है कि ये गॉड है, ये गॉड है, एक ही गॉड है। तो क्या अलग अलग रास्ते ही क्यों कर रहे हैं, आपको एक ही रास्ता है, और वो आपके अंदर ही, आपको कहीं नहीं जाना उसके लिए। क्लियर हुई बात? कबीर ऑफन क्रिटिक the outward displays of religion, such as temple rituals and mosque prayers, urging peoples to see God within themselves. For him, ethical living meant focusing on the inner spiritual value rather than following external religious practices. ठीक है, देख रहे हो? He critiqued the outward displays of religion, like temple rituals, mosque prayers. इनके critique थे वो, against थे। Now he urged people to look within yourself. स्पिरिचुअलिटी के अंदर था, इनर स्पिरिचुअलिटी, अपनी इनर अंदर ही झांको। ठीक है, एंड रादर देन फॉलोइंग एक्सटर्नल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देन उनका जो फेमस दो है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ठीक है, ये इसको कंक्लूड ही करता है। I am within you in encapsulates his belief that the divine resides in every human being and that recognizes this is key to ethical behavior. ठीक है, right? Okay, then rejection of caste and social divisions. ठीक है, he completely rejected caste system. ठीक है, social जो हायरार्कीज है उसको बिल्कुल रिजेक्ट करा इन्होंने, इनके साथ सब बराबर है ऑब्वियसली। ठीक है, कबीर ethics rejects the caste system and all forms of social hierarchy. He was deeply critical of Brahmanical system and the untouchability practice in Hindu society as well as the rigid divisions within the Islamic society. ठीक है, absolutely against है हर एक चीज के। He believed that all people are equal in the eyes of God and ethical living requires the rejection of discrimination based on caste, creed और social status. ठीक है, ऊपर वाले की नजर में इनके साथ सब बराबर है, ये सब जो रिचुअल जो आपने हायरार्की बनाई हुई है ये सब आप ही का करा धरा है। ऊपर वाले की नजर में सब बराबर है, कुछ नहीं, कोई ऊपर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कबीर हिमसेल्फ born into a weaver's family, a lower caste, embodied this belief, challenging both the elite priestly class and the rigid societal norms. ठीक है, yes or no? He emphasized that true spiritual worth is not determined by birth or status, but by one's actions, inner purity, and devotion to God. आप किस घर में, कहाँ, किस कास्ट में, कैसे पैदा हो रहे हैं, उससे कुछ डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आप सब बराबर हैं। आपको कौन सी चीज डिफाइन करेगी? आपके एक्शंस, आपकी इनर प्योरिटी, आप कैसे भगवान के इतने एथिकल हैं अपनी लाइफ में, कि आपके कर्म सही है कि नहीं है। ठीक है, आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। सी, आपके एक्शंस, इनर प्योरिटी और योर डिवोशन टू गॉड, दीज थ्री थिंग्स विल डिसाइड, राइट, योर स्टेटस, कि आप किस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आप किस कास्ट में पैदा हो रहे हैं, वो नहीं, क्योंकि सब गलत चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग। ही कंप्लीटली रिजेक्टेड ऑल दिस। देन इज ट्रुथ। ठीक है, सत्य एंड सिंप्लिसिटी। फॉर कबीर ट्रुथ वाज द हाईएस्ट मॉरल वर्च्यू। सत्य, सी कितने सारे थिंकर्स ने सत्य को वो वेटेज दी हुई है। आप देख ही रहे हैं, हर एक जगह पर इसकी बात होती है। ठीक है, he believed that an ethical life involves living in alignment with truth, both external truth in one's words and actions and inner truth in one's spiritual journey. आपके थॉट्स और एक्शंस दोनों के अंदर होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नली, बोथ शुड बी ट्रूथफुल, राइट। स्पिरिचुअली भी आपको ट्रूथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, और दूसरों के साथ भी आपको ऑनेस्ट रहना है, इंटीग्रल रहना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखना है, राइट। ही कंडेम्ड हाइपोक्रेसी। हिपोक्रेसी बेसिकली किस वे में इन्होंने कंडेम किया था हिपोक्रेसी को, कि यार लोग रिचुअल्स करते रहते हैं, रिलीजियस रिचुअल करते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। ठीक है, falsehood and pretensions, especially in religious practices, where people would engage in rituals without understanding or sincerity. लोग करते हैं लेकिन पता नहीं है किसी को भी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ना वो पूछ रहा है कोई कुछ इसके बारे में, रिचुअल्स ऐसे परफॉर्म करे जा रहे हैं बिना जाने ना समझे। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। आपको ट्रुथफुलनेस जाननी है, आपको सच्चाई जाननी है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। Kabir's Doha frequently criticized those who preach righteousness but live selfishly or deceitfully. ट्रुथफुल होना, ऑनेस्ट होने का मतलब आपको दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, सेल्फलेस रहना है बेसिकली। ठीक है, तो हाइपोक्रेसी, लोग कहते थे कबीर जी कि भैया वैसे रिलीजियस रिचुअल कर रहे हो आप, लेकिन दूसरों के साथ आप डिसीटफुल हो। ठीक है, सेल्फिश हो आप वैसे नेचर में। Simplicity is another key ethical value for Kabir. He encouraged people to live simply, avoiding material excess and the desire for wealth or power, as these are distractions from the true spiritual path. Simplicity को प्रमोट करते थे वो, राइट। डिजायर्स को लेट गो करो, तभी आप वर्चुअस पाथ पे रहोगे, ट्रूथफुल रहोगे, सही राह पे जुड़ोगे। ठीक है, वरना सेल्फिश फील करोगे हमेशा। ठीक है, सेल्फिश रहोगे, अनएथिकल रहोगे, खुश भी नहीं रहोगे। ओके ओके, देन कंपैशन, दया एंड ह्यूमिलिटी, विनय। ठीक है, सो कबीर्स एथिक्स आर बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। ही बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स regardless of their status or background deserve kindness and empathy. He saw compassion as a universal moral duty that transcends social and religious बाउंड्रीज। अगेन कंपैशन में बिलीव करते थे कि दूसरों के लिए आपको कंपैशन रखनी है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, उनकी हेल्प करनी है, हमेशा काइंडफुल रहना है आपको, राइट। आपको सबको बराबर ट्रीट करना है, आपको नहीं देखना कौन किस कास्ट में है, उनकी बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं, राइट। ये आपकी यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटी है।
Then humility was another essential virtue in Kabir's ethical system. He urged people to be humble, recognizing the limits of human knowledge and power. He saw ego, ठीक है, and pride as major obstacles to ethical and spiritual living, as they distance individuals from divine. ठीक है, अगर आप हम्बल रहना है आपको, अगर आप हम्बल नहीं हो, आप डिवाइन से, ऊपर वाले से उतना दूर हो, आपकी ईगो आपके हमेशा आगे आती रहती है, जब तक ईगो आई आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ईगो को जाने देना है, आपको हम्बल रहना है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू था अकॉर्डिंग टू कबीर। ठीक है, ओके। कबीर ऑल्सो emphasized forgiveness and urged people to let go of grudges and hatred, fostering a spirit of reconciliation and unity। फॉरगिवनेस रखनी है हमेशा दूसरों के लिए, ठीक है, अपने अंदर ग्रज नहीं रखने, इससे आप ज्यादा दूसरों से कनेक्ट भी कर पाओगे जल्दी, ठीक है, यूनिटी मेंटेन रहती है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू था अकॉर्डिंग टू कबीर। ठीक है, ओके। देन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, देन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सेवा भाव। Kabir believed that serving others, especially the poor and the downtrodden, was a central component of an ethical life. For him, true spirituality is expressed not through rituals but through selfless service to others. ही राइट, सेल्फलेस सर्विस करनी है आपको, सर्विस टू ह्यूमैनिटी करनी है, हमेशा सेल्फिश नहीं होना, दूसरों के लिए काम करना है, पब्लिक सर्विस की तरफ जाना है आपको। ही टॉट दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज इक्विवेलेंट टू सर्विंग गॉड, as God is present in all beings. This aligns with his belief that unity of all creations and divine presence in every person. Again वही वाली बिलीफ आ गई कि ऊपर वाला सब में प्रेजेंट है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सर्विस, दूसरों में मतलब दूसरों की हेल्प करना मतलब गॉड की हेल्प करना हमेशा। ठीक है, तो ये चीज है, वही अगेन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे बेसिकली यहाँ पर वो। देन डिटैचमेंट एंड रिनंसिएशन। कबीर एडवोकेटेड फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स एंड वर्ल्डली अटैचमेंट्स एज पार्ट ऑफ एथिकल लिविंग। अगेन वही वाले थॉट आपको रिपीट हो रहे हैं, जैनिज्म में पढ़े हैं, बुद्धिज्म में पढ़े हैं, गांधी जी में पढ़े हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की जहां बात है सारे सेम से ही लगेंगे आपको, सेम ही है कि ये सारी चीजें कॉमन है सब में, कि आपको डिजायर्स को लेट गो करना है, ठीक है, डिटैच रहना है, नॉन अटैचमेंट होनी चाहिए एथिकल लिविंग के लिए। He taught that an individual should live a life free from pursuit of wealth, power and sensual pleasures, as these lead to spiritual ignorance and moral decay। बट हम कर यही रहे होते हैं, तब भी पढ़ने के बाद भी हम लगे हुए हैं, ठीक है, पैसे और इन चीजों के पीछे पड़े हैं। ठीक है, आई एग्री कि पैसों से सब कुछ नहीं, मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता, मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, माना एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट पैसा ही सब कुछ है, पर पैसे से ऊपर ही बहुत कुछ होता है। ठीक है, खैर अभी हम अपने पेपर पे रहते हैं, तो यहाँ पर कबीर जी ने जो कहा हमें सिर्फ वो जानना है फिलहाल के लिए, कि आपको नॉन अटैच होना है, आपको वर्ल्डली प्लेजर से दूर रहना है, आपको वेल्थ के पीछे नहीं भागना, ग्रीड नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, सेंशुअल प्लेजर से दूर रहना है आपको, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठी नहीं करनी, मेटेरियलिस्टिक आइटम्स का कलेक्ट करने का डिजायर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, राइट। सो कबीर डिटैचमेंट डज नॉट इन्वॉल्व विथड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी बट लिविंग विद इन इट। सी गुरु नानक जी नाल मिलता है, ठीक है, सेम है उनका भी, कि आपको वर्ल्ड के अंदर रह के ही चीजें करनी है, डिटैच नहीं होना, एकदम कंप्लीट पिनेस नहीं करना आपको, ठीक है, इसी वर्ल्ड के अंदर रहे रहे ही सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है, बट लिविंग विद इन इट विद इक्वेनिमिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन विदाउट बीइंग अटैच्ड टू आउटकम्स और पोजेशंस। एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, वर्ल्ड के अंदर ही रहना है आपको, सबको बराबरी से ट्रीट करना है, ठीक है, सेल्फलेसनेस रखनी है, किसी चीज का डिजायर नहीं रखना, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। ही बिलीव दैट एन एथिकल पर्सन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज बट रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फिश डिजायर्स और ग्रीड। ठीक है, ऑनेस्टली बस अपना एथिक अपना काम करते चले जाओ, ग्रीड नहीं होनी चाहिए, सेल्फलेस डिजायर्स के साथ दूसरों के साथ कंपैशन रखो, दूसरों के लिए फॉरगिविंग नेचर रखो, काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू अदर्स, ये फालतू चीजों में मत पड़ो। ये है बेसिकली कबीर जी के जो है थॉट है, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो। ठीक है, देन इज इनर डिवोशन, भक्ति एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। भक्ति के बारे में भी बोला इन्होंने, यस। सो कबीर एम्फेसाइज भक्ति, उनके लिए डिवोशन क्या थी बाय द वे, एज द ट्रू पाथ टू गॉड, एडवोकेटिंग फॉर अ डीपली पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन विद द डिवाइन। He rejected elaborate rituals, religious texts, and priestly mediation, arguing that direct experience and inner devotion were the most authentic form of spiritual practice। ठीक है, इन्होंने कहा बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए आपके, रिलीजन जैसा, रिचुअल्स के जैसा, या किसी बंदे को प्रीस्टली गॉड, कुछ नहीं, नथिंग।
कोई प्रीस्ट नहीं, कोई टेम्पल नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, आपके अंदर ही है वो। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन बिठाओ डिविनिटी के साथ, अपने एक्शंस को करेक्ट रखो, एथिकल रहो, अपने आप आपका कनेक्शन ही बैठेगा। ठीक है, डीप रिलीजियस, ठीक है, अपने इमोशनल इमोशनल कनेक्शन विद द डिवाइन थ्रू डीप पर्सनल, ठीक है, डीपली पर्सनल, राइट। Kabir's bhakti is also tied to his ethical teachings. He believed that true devotion manifests itself in kindness, compassion, truthfulness, and a sense of oneness with all living beings. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है, he believed that true devotion manifests itself in kindness, compassion, truthfulness, and a sense of oneness with all living beings. Again जो वही बताया मैंने भी आपको कि आपका कनेक्शन बैठेगा कैसे, अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू आर काइंड टू अदर्स, इफ यू आर कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स, इफ यू आर ट्रूथफुल टुवर्ड्स अदर एंड योरसेल्फ, then you will have a sense of oneness, and you also have a sense of oneness with all living beings. That means you have sense of oneness with all living beings, and God resides in all the living beings. Hence you have a sense of oneness with the God. आप God से connect कर रहे हो उसके, in that sense. Clear हुई बात, right? I hope clear हो गई होगी यहाँ तक. Then is again non-violence, ahimsa, same. Kabir's teaching aligned with the principle of ahimsa, which was common in many religious traditions of time, such as Jainism, Hinduism, and Buddhism. He advocated for non-violence not just in physical action but also in speech and thought. Again, I am not repeating. हम बहुत बार कर चुके हैं इस चीज को कि internally, externally दोनों जगह आपके non-violent होने चाहिए thought और action में. For Kabir, ethical living involved avoiding harm to others, whether through physical violence, harsh words, or even hateful thoughts. He believed that love and compassion are highest virtues, and that violence in any form was incompatible with the realization of truth and unity. Right? वही again हम देख चुके हैं इस चीज को, so no need of repeating this again and again. Let's move on. Then is critique of religious orthodoxy and hypocrisy. Hypocrisy. Right. Kabir was deeply critical of the religious orthodoxy of both Hindus and Muslims of his time. He believed that true spirituality did not depend on rituals, practices, pilgrimages, or the wearing of religious symbols, but on living an ethical life of truth, love, and devotion. Again, basically, especially Hinduism और Islam, basically दो होते थे उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, इन दोनों के अगेंस्ट थे वो, क्रिटिक थे इनके बहुत ज्यादा, इन ऑर्थोडॉक्स, इन रिलीजियस बिलीव्स के, right? His dohas often mock religious leaders, both Brahmins and Mullahs, for their hypocrisy, arguing that they focus more on outward forms of religion than on inner purity and moral living. See, अब कबीर जी के दोहे आपको सारे तो रटने नहीं है, अब आपको एक बार उनकी ये बिलीफ पता लगी, प्रिंसिपल्स पता लग गए, तो उनके दोहों को कैसे अलाइन करोगे आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आपको पता लग गया उनका थॉट प्रोसेस कहाँ रहता था, क्या सोचते थे, किस बारे में सोचते थे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, चाहे कोई भी कोटेशन आएगी आप कर जाओ। So Kabir's critique of religious orthodoxy was not an attack on religion itself, but a call to return to its core ethical principles. पर्सनल अटैक नहीं था किसी के भी ऊपर, वो एक्चुअली कहते थे भाई अपने अंदर झांको, इन चीजों में नहीं पढ़ना आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करना है, इनर अपनी एथिकल वैल्यूज को फॉलो करो, दैट्स इट। पर्सनल किसी से साथ नहीं थे वो, राइट। सो दिस वाज इट, आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। कबीर अभी डन, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे। So I hope you like this lecture. If yes, then please do give us a thumbs up. Right? I will meet you in the next lecture. Until then, I wish you good luck for your future endeavors. Take care and bye bye. Thank you.